Okay, I think we should start. I don't know where he is. Let's not waste time. So in the last class, we have completed the exercise number 8.1, right? Please unmute your mic, both of you. Yes, Hamna? Yes, ma'am. Okay, fine. So today we are going to start the midpoint theorem, okay, which is very important theorem. So, okay, let me just use a different page for it because we have to prove it. Okay. So wait. So this is called the midpoint theorem. What does it say? That the line segment, please note it down. Tomorrow I'll see your notebooks, okay? Yes, both of you. Please unmute your mic. Okay, so this is a very important theorem which is called the midpoint theorem. So what does it say? It says that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. Okay, so this is your triangle ABC. Now this, let's say D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Okay, so the line segment which will be formed by joining the midpoint of AB and AC. So this line segment DE, okay, is parallel to the third side. तो ये जो DE है ये BC के parallel भी होगा and is also half of the third side. यानी कि ये DE जो है वो BC का half भी होगा, right? This is called the midpoint theorem. Any no response, no yes and no. Where are you? Yes, ma'am. Okay, just okay. So let's prove this theorem because its proofs also comes in the exam sometimes. So whatever is given, write it down. So you are given that ABC is a triangle. Okay, and D and E are midpoints of AB and AC respectively. So here we are going to do one construction. Okay, so what we are going to do is हम एक ये जो line BD है, ठीक है, BD के parallel एक line draw करेंगे और इस DE को इधर एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये जाके यहाँ मिल जाए. लेट दिस पॉइंट इज कॉल्ड F. ऑलराइट, तो हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि ड्रॉ CF पैरेलल टू AB. ठीक है, ये जो लाइन CF है ये पूरा AB के पैरेलल है, राइट? एंड प्रोड्यूस DE टू F, और DE को हमने प्रोड्यूस कर दिया है ताकि वो जाकर F से मिल जाए. सो दिस पॉइंट इज योर F. ऑलराइट, Yes, ma'am. ओके. Fine. Now, to prove, so what we have to prove is
we have to prove that DE is parallel to BC. ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट से मिला के बना है DE, ये BC का पैरेलल है एंड ये BC का हाफ भी है, यानी DE is equal to half of BC. This is what we have to prove here. ठीक है, let me mark some angles. This angle, this angle, this angle, and this angle. So I'm just calling it, this is my angle number 1, and this is 2, and this is your 3 and 4. All right, this is how you mark it. ठीक है, अच्छा तो हमारी स्ट्रैटेजी इसमें क्या रहेगी? अब आप देख सकते हैं फिगर में कि हमने ए बी साइड से इसके पैरेलल ये वाली साइड ड्रॉ की है, राइट? तो अगर हम किसी तरह से इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, दिस मच पार्ट, अंडरस्टूड मृदुला? आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस. Yes, ma'am. ओके, सो वी विल ट्राई टू प्रूव दिस अ पैरेललोग्राम. ये बी सी एफ डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. उससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी पूरी की पूरी साइड है डी एफ, ये बी सी का पैरेलल हो जाएगी, और जब डी एफ बी सी का पैरेलल होगा तो उसका कुछ पार्ट भी बी सी के पैरेलल होगा. ठीक है, तो वहां से आपका जो डीई है वो बी सी के पैरेलल आ जाएगा, राइट? फाइन. Yes, ma'am. यस, ओके. सो ये पूरी लाइन जो डीएफ है ये बीसी के पैरेलल प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका कुछ पार्ट भी बीसी के पैरेलल हो जाए. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ. सो लेट्स डू द प्रूफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ट्राइंगल एडीई. देखो अब हम कैसे करेंगे, हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दिस ट्राइंगल एडीई, ओके, दिस मच, और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इस ट्राइंगल के. ऑल राइट, now take these two triangles. So in triangle ADE and triangle, अब triangle का नाम बहुत ध्यान से रखना है. If I'm starting this from A, so I'm going to start this from C. ठीक है, और यहाँ पे D लिया है तो इसमें क्या लेंगे बताओ? Take it like this, okay? CEF और ADE ऐसे. तो अब angle 1 will be equal to angle 2. Why हम ना? Ma'am, because they're alternate angles. Exactly, because Mridula, is this point clear? Yes, ma'am. Okay, why they are alternate angle? Explain it to me. Ma'am. Are you not well? Yes, ma'am. चलो फिर भी बताओ, why do you think they are alternate angles? Ma'am, because there's a line. Ma'am, it forms a Z angle. Okay, between which lines? Ma'am, A, ma'am, A, D, E, and E, F, C. FC. ओके फाइन. देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, सो इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, राइट? सो बिकॉज वी कैन राइट दैट ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, तो इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट, राइट? ओके, अब एक चीज और बताइए, और क्या ले सकते हैं? Ma'am, AD is equal to CF. सॉरी, प्लीज लाउडर. Ma'am, AD is parallel to CF. नहीं, पैरेलल तो ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तो इक्वल की जरूरत होती है, तो इक्वल किसको लेंगे यहाँ पर? देखो दो एंगल आ गए, अब एक साइड का कोई रिलेशन चाहिए. ठीक है, अब ये गिवन है ना क्वेश्चन में दैट ई इज द मिड पॉइंट, राइट? तो ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा ना. Yes, ma'am. ओके, सो ए ई इज इक्वल टू ई सी, राइट? तो ये ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए.
ये ट्राइंगल का नाम थोड़ा गलत ले लिया ना, CFE होना चाहिए, राइट Yes. राइट राइट हम ना। हाँ, तभी तो दोनों का देखो लास्ट वाला पॉइंट E है और इसका E है, तभी तो ये वाली लाइन कॉमन आएगी ना, A इज इक्वल टू CF, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, तो CFE लेना है। तो ये आपका हो गया ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE। अच्छा, हमने क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है? क्योंकि हम साइड्स के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं और वो हमारा CPCT से आ जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट योर AD इज इक्वल टू CF, राइट। अब देखो ये वाली जो साइड थी ये तो ऑलरेडी इक्वल थी, तो अब दूसरी वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू CF आ गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और जो थर्ड साइड है विच इज योर ये वाली ना, दिस इज योर थर्ड साइड, तो ये वाली थर्ड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी एंड योर DE इज इक्वल टू EF। यहाँ तक ठीक है? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब आप देखिए, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। ओके, मैं क्विकली यहाँ फिर से एक बना देती हूँ बिकॉज so this was my A, B, C, and this is what our figure is. Okay, this is D, E, and F. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब इस पैरेललोग्राम को देखिए BDEF। ओके, लुक एट दिस पैरेललोग्राम नाउ। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये हम कैसे दिखाएंगे, देखिए नाउ AD जो है वो हमने CF के इक्वल प्रूव कर दिया, और AD जो है, एक मिनट, जस्ट लेट मी राइट विद माय पेन। ओके फाइन। यस, AD इज इक्वल टू CF, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और AD BD के इक्वल है, ये हमारा ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, ये फ्रॉम 1, तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, सो Yes, दिस implies दैट योर BD इज इक्वल टू CF। अब इस पैरेललोग्राम में हमारी जो एक साइड है ये BD, सॉरी दिस साइड, ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है, और बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया था एंड BD इज पैरेलल टू CF। ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ड्रॉ ही इसको पैरेलल किया था। ठीक है, अब देखिए किसी एक पैरेललोग्राम में अगर एक पेयर, ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, राइट। yes, ma'am. तो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट सिंस वन पेयर of opposite side is equal and parallel, so therefore it's a parallelogram, therefore your BDFC is a parallelogram। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसकी दूसरी वाली जो ऑपोजिट पेयर है वो भी पैरेलल होगा आपस में, सो देयरफॉर अब जो साइड DF है वो पैरेलल होगी BC के। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। इजंट इट? ठीक है, Yes, ma'am. हम्म, तो DF अगर पैरेलल टू BC है तो DF का कुछ पार्ट भी BC के पैरेलल होगा, तो यहाँ से, सॉरी मैं पेन, ओके, so this implies that your DE is also parallel to BC।
इज दिस क्लियर? सो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि हमने डीई को पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है ना। पूरी लाइन डीएफ पैरेलल आ गई थी तो उसका कुछ पार्ट भी बीसी के ही पैरेलल होगा। सो लाइक वन थिंग वी हैव प्रूव्ड। अब हमको दिखाना है कि डीई बीसी का हाफ भी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी तो होती है ना। एंड डीई जो है वो इक्वल, वेट अ मिनट, डीएफ is equal to BC because opposite sides of a parallelogram are equal. ऑपोजिट साइड्स देखो, यहाँ पे पैरेलल वाला यूज किया था और यहाँ पे इक्वल, तो अब इक्वल भी होती है तो यानी कि डीएफ बीसी के इक्वल हो गया। अब डीएफ को हम कैसे लिख सकते हैं? डीएफ कैन बी ब्रोकन इनटू डीई प्लस ईएफ, राइट, इज इक्वल टू बीसी। अब डी ईएफ के बराबर है, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया था। सी फ्रॉम सेकेंड, कैन यू सी इट? कैन यू सी इट हियर? ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो वी कैन राइट इट DE plus DE is equal to BC from second, ठीक है। तो twice of DE is equal to BC and DE is equal to half of BC. So this is also we have proved that DE जो है वो BC के parallel भी है और DE BC का half है. This is called the midpoint theorem. So have you written this? No, Yes. ma'am. Mridula, are you also writing? Yes, ma'am. Okay. Please draw the figure properly and just let me know if I need to scroll it down. Okay, tell me one thing. Have you studied this chapter in your school already? No, ma'am. Okay, and Hamna, you? No, ma'am. Okay. Okay, please avoid such things in exam. ये मैं short में लिख देती हूँ. Please you write it completely parallel. Okay. Done? Yes, ma'am. Okay. So let me just go to the chapter. Yes, Mridula, done? Yes, ma'am. Okay. So we have studied the midpoint theorem. ठीक है? Midpoint theorem समझ में आए कि क्या होती है? Yes, Mridula, what is midpoint theorem? Tell me. Tell me in your own words. Yes, Hamna, you tell me. Yes, Hamna. अच्छा, फिर से सुनिए, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, यू हैव अ ट्राइंगल, यस बोथ ऑफ यू, Yes, ma'am. ओके, यू हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और इन दो साइड्स का मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, दिस इज योर मिड पॉइंट डी एंड ई। तो डी जो है एबी का मिड पॉइंट है, ई एसी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि किसी ट्राइंगल में जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है, यानी ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा डीई, तो ये लाइन सेगमेंट, सॉरी, ये जो डीई लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा,
ठीक है, क्योंकि हमने ए बी और ए सी साइड तो यूज कर ली, ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, अब जो साइड बच गई वो कौन सी है, दैट इज बी सी, राइट। तो ये जो लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और ये थर्ड साइड का हाफ होगा। दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज। इज दिस क्लियर नाउ? चलो हम ना नाउ क्विकली रिपीट व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। Ma'am, the line drawn through the midpoint of one side of triangle to the base of a triangle. ऐसे नहीं, रीडिंग नहीं करनी है, अपने वर्ड्स में बताओ मेरे को, जो मैंने अभी समझाया है, टेल मी दिस थिंग। Ma'am, the midpoint is parallel and it is half of the baseline of a triangle. मिड पॉइंट इज हाफ नहीं भाई, ऐसे बोलिए, देखिए एक फिर से समझिए, मृदुला प्लीज अंडरस्टैंड इट अगेन, आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस इवन, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको माइंड में समझिए, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इफ यू हैव अ ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज योर गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इट्स अ गिवन ट्राइंगल। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इफ इन अ ट्राइंगल, इन अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अगर आपको दो साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है, सो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी ये हमें पता है कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, दिस मच वी नो। तो जो लाइन सेगमेंट बनता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, सो यहाँ से थ्योरम स्टार्ट होती है दैट द लाइन सेगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, दिस लाइन सेगमेंट, नाउ दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो DE है ये पैरेलल होगा BC के, and this line segment is half of the third side। बात समझ में आई हम ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड का हाफ होगा। दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम इज। और ये लाइन सेगमेंट बना कैसे है? ये बना है दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। मृदुला, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. चलो रिपीट करो, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। Ma'am, the line drawn from the midpoint of one side. ऑफ टू साइड्स, एक साइड से कैसे लाइन बन जाएगी? लाइन के लिए दो पॉइंट्स चाहिए ना। द लाइन सेगमेंट विच इज formed by joining the midpoints of two sides of a triangle, yes? Yes, ma'am. चलो दोबारा बोलो। The line segment drawn from joining two midpoints of a triangle. Midpoints of two by sides, joining the midpoints of two sides of a triangle, yes? and it is parallel to the third side, and it is half of the third side. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इन्फॉर्मेशन तो दिमाग में रखिए कि ये थर्ड साइड का पैरेलल होता है और थर्ड साइड का हाफ होता है, लेकिन ये DE है क्या ये भी पता होना चाहिए। अब ये DE क्या है? ये वो लाइन सेगमेंट है जो दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हम ना, आप समझ में आया व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? Yes, ma'am. चलो जल्दी से बताओ, वेरी क्विकली रिपीट। Ma'am, the line segment drawn from two midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is and half is of equal to half of the third side, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल माइंड में रहना चाहिए कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनता है तो ये ही लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का पैरेलल भी होता है और थर्ड साइड का हाफ होता है। ये हमने अभी प्रूफ भी करके दिखाया है, ठीक है। तो प्रूफ मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अब आपके माइंड में भी बैठ गया है व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। अब ऐसे ही इसका एक कन्वर्स भी होता है, जैसे हमने सारी थ्योरम्स का एक कन्वर्स भी पढ़ा है। अब जैसे पैरेललोग्राम की एक थ्योरम थी कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो सॉरी, जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर
what was the theorem? I forgot. या जैसे हमने पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? ऐसे ही उसका कन्वर्स होता है कि इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अब ऐसे ही मिड पॉइंट थ्योरम का भी कन्वर्स होता है, विच इज योर थ्योरम 8.10, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दोनों यूज होते हैं, थ्योरम भी और उसका कन्वर्स भी। अब कन्वर्स में क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड। अब इसमें हमको देखिए, इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट को बाद में ध्यान से देखना। जैसे फिर से ये दिया है कि एक ट्राइंगल आप लीजिए ABC, राइट मृदुला? यस, सो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब हमको सिर्फ एक ही साइड का पता है कि ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है, हमें दूसरी साइड का नहीं पता। ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लेकिन हमें ये पता है कि इस बार ये लाइन सेगमेंट BC का पैरेलल है, राइट? Yes, ma'am. तो अब की बार उसने पैरेलल ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये AC का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो अगर हमें ये दिया हो कि एक साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा हो जो कि लाइक बेस साइड के पैरेलल है, तो ये सामने वाली साइड को यानी AC को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जो ये पॉइंट बनेगा F, ये AC का मिड पॉइंट होगा। इतनी बात समझ में आई है? Yes, ma'am. ठीक है, मैं ओके, ये थ्योरम है और ये उसका कन्वर्स है। तो थ्योरम में आपको ऑलरेडी ये दिया था कि जो D और F थे ये आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन था। और आपने प्रूफ क्या किया था? आपने प्रूफ किया था दैट योर DE, सॉरी दिस वाज योर E, ये DE को आपने BC का पैरेलल प्रूफ किया था, फाइन। और कन्वर्स में DE जो है वो ऑलरेडी BC के पैरेलल गिवन है, ठीक है। और आप प्रूफ क्या कर रहे हो? दैट E is the midpoint of AC. Yes, is this point clear? Yes, ma'am. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, प्लीज राइट इट डाउन, ताकि आपको ध्यान रहे कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग। तो जब थ्योरम है तो आपको ये गिवन है एंड दिस इज व्हाट यू आर प्रूविंग, लाइक टू प्रूव, यहाँ पे लिख लेना टू प्रूव। और कन्वर्स में दिस इज गिवन दैट DE is parallel to BC and you are proving that E is the midpoint of AC and it is also given that D is midpoint of AB। एक साइड का गिवन होता है बट दूसरे साइड का हम प्रूव करते हैं कन्वर्स में। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Please note it down. Ridula, please write it in your copy. Done? Okay. चलो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, then I'll move to the exercise. Now what does it say? ये एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, this is your triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints, ठीक है। ये you can see D, E and F ये midpoints हैं इन तीनों साइड के। Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining D, E and F। तो अगर हमने ये मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यस, ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, चलो इसको करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम। सो व्हाट इज गिवन टू यू हियर, राइट दैट D, E, F
are midpoints of sides. अब D किसका है तो उसको पहले लिखेंगे AB, फिर E है BC का मिड पॉइंट और F है AC का ऑफ AC रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है? यस हम ना मृदुला, Mridula, your mic is on mute constantly. This is not the way to sit in the class. And Yes, Hamna, you ma'am. too. Okay. Now to show. अब ये जो तीनों triangles हैं, like all four triangles are congruent. ठीक है, मैं अभी नाम नहीं लिख रही हूँ, बाद में देखेंगे. और you can write the names of the triangle also. अब बाद में खुद लिख लेना जब proof हो जाएगा. चलो, let's do the proof. अब एक बात देखो, अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे. ठीक है, अब हमको पता है कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, राइट? Yes, ma'am. तो इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड डी सी. ठीक है, तो अब थर्ड साइड ट्राइंगल कौन सी हो गई? ए सी. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम या फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम आपकी जो लाइन डी ई है ये पैरेलल हो गया एसी के. यस, ठीक है. यस, देखो ये वाली जो साइड है डी ई ये एसी के पैरेलल हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. यस मृदुला, because this was the midpoint and this was the midpoint, right? So from midpoint theorem this is parallel. Now similarly, तो अब हम ऐसे तीनों साइड को नहीं करके दिखाएंगे. We can write it similarly. अब ऐसे ही लिख देंगे similarly. अब जो लाइन आपकी डी एफ है वो पैरेलल आ जाएगी बी सी के and your EF will be parallel to AB. Yes? Yes, ma'am. Okay, तो इतनी बात हो गई कि हमने इनको पैरेलल आपस में पैरेलल दिखा दिया. अब हम क्या करेंगे? ADEF एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं. ठीक है, टेक दिस पैरेललोग्राम ADEF, आई मीन दिस वन. इसको हम इस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है, वी डोंट नो इट्स अ पैरेललोग्राम. तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम दिखाने के लिए? अगर हम किसी एक पेयर ऑपोजिट साइड के किसी एक पेयर को ऑपोजिट और पैरेलल दिखा दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. यस, ठीक है. इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ADEF. ठीक है, अब हमको ये पता है कि अभी हमने प्रूफ किया. क्या प्रूफ किया? दैट ये जो साइड है आपकी EF ये ऑलरेडी इस पूरी साइड AB के पैरेलल है, इजंट इट? तो Yes, ये ma'am. हाफ ऑफ AB के भी पैरेलल होगी, राइट? Yes, ma'am. तो एक चीज तो ये हो गया दैट EF is parallel to AD. Why? Because EF जो था वो already AB के पैरेलल था, तो उसके हाफ के भी पैरेलल हो गया. अब EF AD के बराबर कैसे होगा? अब हमको पता है फ्रॉम दैट EF हाफ ऑफ AB है. कहाँ से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, Yes, ma'am. मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ होता है तो, और AB का हाफ कितना है? लुक इन द फिगर. बिकॉज D मिड पॉइंट है तो AB का हाफ AD हो गया. ठीक है, AD दिस Yes, इज ma'am. हाफ. तो हम लिखेंगे, सॉरी, यस. सो EF is equal to AD.
ठीक है, अब देखो EF AD का पैरेलल हो गया और EF AD के इक्वल भी हो गया. नाउ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel and equal. तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. सो देयरफॉर ADEF is a parallelogram. ठीक है. इतना लिखो, then I'll move. Yes, Mridula written. Hamna Yes, ma'am. Yes, ma'am. done. Okay. Acha. Now try to see one thing here. See, what I'm trying to do is, please try to understand. देखिए मैंने अभी क्या किया, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया. ठीक है, क्यों प्रूव किया? अच्छा, ये अभी नहीं लिखना है, इट्स समथिंग ऐसे रफ में मैं कुछ लिख रही हूँ. आई रब इट. ठीक है, देखो एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है ये इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. इजंट इट? Yes, ma'am. यस, देयर इज अ थ्योरम. तो हम यही कर रहे हैं कि हमने पहले ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया ADEF, जिसको मैंने येलो बनाया है, और हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ताकि हम ये थ्योरम का यूज करके बोलें कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, और किसी एक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने ऐसा किया और बाकी के दो क्वाड्रिलेटरल को हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द अदर टू क्वाड्रिलेटरल, ये मैं आपको एक बार कलर करके दिखा देती हूँ. देखो एक ये वाला बनेगा आपका. यस, Yes, ma'am. ठीक है, और ऐसे ही एक ये वाला बनेगा, लाइक दिस वन. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हम तीनों को अलग अलग नहीं करेंगे, हमने किसी एक ही क्वाड्रिलेटरल को पहले लिया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया था, इसको हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव हो गया है तो अब हम ये वाली थ्योरम का यूज करेंगे दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो इसको बस हम लिख देते हैं दैट इन पैरेललोग्राम ADEF, ठीक है, DF is a diagonal and therefore जो ये triangle है ADF will be congruent to triangle E कैसे लिखेंगे इसको, EFD, EFD. ठीक है, राइट. ओके, अब बाकी को करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख देते हैं. सिमिलरली यानी इसी मेथड से आपका जो ये वाला ट्राइंगल होगा विच इज योर BDF, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EFD के, एंड योर ट्राइंगल CEF भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल EFD के. So therefore we can write that all four triangles are congruent. ठीक है, देखिए क्वेश्चन का जो अप्रोच रहेगा ना, ये आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करना क्या चाह रहे हैं. अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है माइंड में तो बाकी तो आपको लाइक यू हैव जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली, isn't it? सो बेसिकली व्हाट वी ट्राइड टू डू इज, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया पहले, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया ताकि हम ये वाली थ्योरम को यूज कर सकें दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ठीक है, बात समझ आई? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं. देयर आर ओनली 2 एग्जांपल्स इन दिस एक्सरसाइज. सो शैल आई रब इट?
Have you written? Okay, let's see the next example also. Now, what does it say? See, L, M, N are three parallel lines. ठीक है, ये L, M, N जो है ये तीन parallel lines हैं. Intersected by transversal P and Q. तो ये जो transversal है P and Q ये इन parallel lines को intersect कर रहा है. Such that L, M, N cut off equal intercepts AB and BC. यानी कि ये जो intercept है AB और BC आपस में equal है. Is this point clear? On P, ठीक है. Show that L, M, N cut off equal intercept D, E and EF on Q also. यानी हमको इतना तो दिया है that your AB is equal to BC, ये तो already given है, but ये हमको दिखाना है that DE is also equal to EF. Yes? यानी कि यहाँ वाला intercept भी आपस में equal है. This we have to prove. Okay, so let's do it. It's very easy. इसमें सिर्फ midpoint theorem को use करना है. That's it. Write what is given to you. So in this question, it is given that AB is equal to BC and you have to prove that DE is equal to EF. This you have to prove. चलो prove करते हैं इसको. It's very easy. अब हम ये वाला triangle ले लेते हैं. Take this triangle ताकि हम इसमें midpoint theorem use कर सकें. Midpoint theorem को use करने के लिए पहले triangle लेना पड़ेगा, right? Now take this triangle. देखिए इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा. कैसे यूज होगा? अब ऑलरेडी गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो बी है ये ए सी का मिड पॉइंट है. फाइन. ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन. सो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो एक साइड का मिड पॉइंट हमको पता है. अब अगर हमको ये पता हो कि बी जी पैरेलल है सी एफ के, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं. अब ये हम लिख सकते हैं दैट बी जी इज पैरेलल टू सी एफ. वाई? क्योंकि जो लाइन एम है वो एन के पैरेलल है. पूरी लाइन पैरेलल है तो उस लाइन का कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, राइट? Yes, ma'am. तो बी जी सी एफ के पैरेलल आ गया. तो बस यहाँ पर लिखो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब ये जो G है ये AF का मिड पॉइंट आ गया. ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF. तो एक दूसरी साइड का मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, अब हमको बेसिकली प्रूव क्या करना है? DE इज इक्वल टू EF. तो अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा. नाउ दिस टाइम वी टेक दिस ट्राइंगल. यस मृदुला? Now take this triangle. So in triangle AFD, AFD. अब क्योंकि हमने G को ऑलरेडी मिड पॉइंट प्रूव किया तो इस वाले ट्राइंगल के लिए ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई. ठीक है, यानी अब की बार हमको ऑलरेडी पता है दैट G जो है वो AF साइड का मिड पॉइंट है, राइट? G is the midpoint of AF. ये हमने अभी प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड. ठीक है, अब GF जो है GF साइड वो पैरेलल होगी AD साइड के, बिकॉज जो लाइन M है वो L लाइन के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है. यस मृदुला? Yes, ma'am. ठीक है, तो M L के पैरेलल है तो इसका ये कुछ पार्ट इसके इक्वल पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, अब फिर से लिखो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब हम बोलेंगे दैट E is the midpoint of
DF। ठीक है, तो अब हमने बोला कि कन्वर्स से अब ये E भी मिड पॉइंट आ गया, राइट? और वी कैन राइट, अब जब E मिड पॉइंट है तो वी कैन राइट दैट DF इज इक्वल टू, सॉरी, DE इज इक्वल टू EF. This is what we were supposed to prove here. Is this point clear? Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, you wrote GF is parallel to AD, but I guess it is GE parallel to AD. हाँ, सॉरी, G, हाँ, फाइन, E ही है वो. I was supposed to write E, but by mistake I wrote F. Yes, fine. GE is parallel to AD. Let's do exercise now. Okay, we started late, so we have 15 more minutes now. Okay, have you written? Yes, have you done? Yes, ma'am, done. Okay, let's do exercise now. Exercise 8.2. Now ABCD is a quadrilateral. तो ये आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल. PQRS आर मिड पॉइंट्स, तो ये ऑलरेडी गिवन है कि PQRS, ठीक है, PQRS ये इसके मिड पॉइंट्स हैं. AC एक डायगोनल है. यू हैव टू शो दिस थिंग दैट SR इज पैरेलल टू AC, यानी कि ये वाली जो साइड है SR, ये AC के पैरेलल है और SR हाफ भी है AC का. और ठीक है, ऑलराइट, एक एक करके हम प्रूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो सबसे पहले लिखिए व्हाट इज गिवन टू यू. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये इसलिए लिखना जरूरी है बिकॉज वी डोंट नो इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल ओनली. और PQRS मिड पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. अब P किसका है? वो AB का है. BC, देन CDS है, DA और AD respectively. All right, now what we have to prove. To prove, अब ये prove आप already लिख लीजिए, it is already given here. Let's do the proof. अब हम एक triangle लेते हैं ADC. This triangle, take this triangle ADC. ठीक है. In triangle ADC. Now what is given to you? अब ये already given है ना कि S और R mid points हैं. ठीक है. S R are midpoints of side of AD and CD. ठीक है. अब क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब मिड पॉइंट थ्योरम से जो आपकी साइड SR है, दिस विल बी पैरेलल टू AC, राइट मृदुला? Yes, And ma'am. also it will be half of AC. Equation number 1. Fine. देखो, हमको ये ऑलरेडी पता था कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं. अब क्योंकि दोनों मिड पॉइंट पता है तो बस हमने बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये थर्ड साइड के पैरेलल भी है और थर्ड साइड का हाफ भी है. अब ऐसे ही हम ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे. ठीक है, टेक दिस ट्राइंगल दिस टाइम. नाउ क्विकली राइट. सो इन ट्राइंगल ABC, अब हम लिखेंगे दैट P एंड Q आर मिड पॉइंट्स of AB and BC. So by midpoint theorem, अब PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Equation number 2. इतना लिखो. अब बेसिकली हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने यहीं पे प्रूव कर दिया.
दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट वी वर डूइंग, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू डू बेसिकली द सेकंड पार्ट, जिसमें ये एस आर पैरेलल टू AC दिखाना था और एस आर हाफ ऑफ AC, ठीक है, वो हमने दिखा दिया। नाउ वी आर ट्राइंग टू शो दैट PQ इज इक्वल टू SR, इतना लिखा, हैव यू रिटन? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का RHS देखिए, दोनों में हाफ ऑफ AC है ना, तो यानी कि उनका लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल आ जाएगा। तो बस लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका पास आ गया योर SR इज इक्वल टू PQ। So this you have also proved, like second part also you have proved. Now let's do the third part. अब third part में दिखाना है that PQRS is a parallelogram. अब ये कैसे दिखाएंगे? Now make use of this thing. देखो ध्यान से, SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। अच्छा, अब ये वाला थ्योरम यूज करेंगे कि कोई एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड का वो इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, राइट? तो अभी हमको ये वी हैव ऑलरेडी प्रूव कि ये जो साइड है SR ये PQ के इक्वल है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। अब हम ये प्रूव कर देते हैं दैट SR PQ के पैरेलल भी है, तो फिर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसको हमने पहले नाम नहीं दिया था, हम कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, इट डजेंट मैटर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए एंड दिस कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC. So therefore SR is parallel to PQ. Why? Hamna, tell me why SR is parallel to AC. PQ, sorry. Ma'am, because PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC. हाँ, लेकिन ये हमने कैसे कहा कि आप फिर SR भी PQ के पैरेलल है? Left hand side is equal, so we just नो, took वो तो इक्वेशन में होता है, पैरेलल लाइन कैसे प्रूव हो गई? वो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड था वो हमने यहाँ यूज किया था, लाइक इक्वेशन 1 एंड 2 में, ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इट्स पैरेलल। यस मृदुला, कैसे आया बताओ? एस आर भी AC लाइन के पैरेलल है और PQ भी AC लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कैसे हो गई? यस, ये पढ़ा था लाइंस वाले चैप्टर में। भूल गए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्लीज रिमेम्बर। हमने लाइंस वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन है, अगर ये दोनों लाइन इस थर्ड लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होती है, इजंट इट? Yes, ma'am. पढ़ी थी ना एक थ्योरम yes, ma'am. कि अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं, वही थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज किया है। यू हैव टू मेंशन लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल। तो यहाँ पे प्लीज ये ध्यान रखना है कि ये कोई इक्वल टू वाली इक्वेशन नहीं है कि आपने इक्वेट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये हमने थ्योरम से किया है, ठीक है, दिस इज बाय थ्योरम, ठीक है। अब हम बेसिकली हम दिखाना चाह रहे थे कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो लाइन है SR ये PQ के पैरेलल भी है और इक्वल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो बस इसको समराइज कर दीजिए। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, एक पेयर जो है यानी SR वो PQ के पैरेलल भी है और SR इक्वल टू PQ भी है, तो हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड is equal and parallel and therefore PQRS is a parallelogram. Yes? Yes, ma'am. Okay. See, these are all theorems I'm using. This is also a theorem, ठीक है?
दिस इज ऑल्सो अ थ्योरम। तो जो हमने पहले सब पढ़ा है वो आपको याद रखना है। आई एम यूजिंग एवरी थ्योरम हियर। दिस इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। सो एवरीथिंग इज आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स हियर। Please note it down. Yeah. Yes, done. No, ma'am. Ma'am, done. Yes, Mridula, done. No, ma'am. Yes, Mridula, done. Yes, ma'am. Okay, I think I don't have much time left. I'll do question number 4. ये हमने बिल्कुल ऐसा ही एक question अभी किया है, because question number 2 and 3 are a bit lengthy questions. So let's do question number 4. Then I'll end the class. ये बिल्कुल ऐसा ही question है जो हमने यहाँ पे अभी किया है. Let's do it quickly. So I'm just writing. Okay, इसमें बोला है that ABCD एक trapezium given है आपको. A B C D, ठीक है, it's a trapezium given to you. और ये diagonal AC को join किया है. There is a line EF which is एक line इसको ऐसे pass कर रही है. This point is E, this point is F. Okay, इसको हम G बोल देते हैं. So first of all write what is given to you. क्योंकि trapezium है और तो इसकी opposite sides AB, sorry, मैंने just a minute, मैंने इसका naming कुछ गलत दे दिया. I should give it according to the question. A B C D. Okay, because question में given था that AB is parallel to CD, right? तो ट्रेपेजियम में एक पेयर जो है लाइन का वो आपस में पैरेलल होता है. तो AB is given to you which is parallel to CD. और क्वेश्चन में ये गिवन है that E is the midpoint of AD. बस इतना ही दिया है, ठीक है. E is the midpoint बस. और एक चीज और दी है that your EF लाइन सेगमेंट जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है. ये मिडिल वाला जो लाइन है ये AB के पैरेलल है. What we have to show is that F is the midpoint of BC.
ऐसा सेम अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, याद है? एग्जाम्पल नंबर 2, यस। Yes, ma'am. तो बिल्कुल वही करेंगे, इसमें पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, यस। अब ये लाइन ऑलरेडी ई एफ ए बी के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, तो ई जी भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा, इजंट इट? तो बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम दिखा देंगे कि जो जी है वो बी डी का मिड पॉइंट है, और फिर हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे नेक्स्ट वाला, उसमें फिर से कन्वर्स लगाएंगे और ऐसे हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट। अब ए बी डी में क्या गिवन है, दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, फाइन। Yes, और ma'am. हम लिख सकते हैं दैट ई जी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, वाई? बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अब जी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट आ गया, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओके, दिस वी हैव प्रूव्ड, ओके फाइन। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। नाउ टेक दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमको जी ऑलरेडी पता है कि मिड पॉइंट है बी डी का, राइट मृदुला? Yes, ma'am. लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइन जी एफ है वो सी डी के पैरेलल है, राइट। Yes, ma'am. बट हमको तो नहीं पता, अब ये कैसे प्रूव होगा दैट जी एफ इज पैरेलल टू सी डी? तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा दैट जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, तभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाएंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे नाउ, अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो लाइन ई एफ है, ठीक है, ये पैरेलल ए बी के क्या है, गिवन है, यस। Yes, ma'am. और सी डी जो लाइन है ये भी ए बी के पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो अब दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, इसका मतलब आपस में भी पैरेलल होंगी। Yes, ma'am. सो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, वाई? फिर से वही थ्योरम्स लगाइए, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन are parallel to each other, ठीक है। अब ई एफ पैरेलल टू सी डी हो गया, तो यानी ई एफ का कुछ पार्ट जो जी एफ है वो भी पैरेलल टू सी डी हो गया, इज दिस फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, सॉरी बी सी डी कुछ भी ले लीजिए बिकॉज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस तो नहीं कर रहे, बस इट इज सिंपली द नेम ऑफ द ट्राइंगल। तो अब जी इज द मिड पॉइंट, तो एक साइड का मिड पॉइंट हमको पता है इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और हमको पता है कि ये जो बीच वाला लाइन सेगमेंट है जी एफ ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is the midpoint of BC, बस यही प्रूव करना था। से इसमें सिर्फ थ्योरम्स यूज हो रही हैं, आई मीन थ्योरम है क्या ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। What is midpoint theorem and what is the converse of midpoint theorem? This should be very clear in your mind, Yes, right? ma'am. तो वो जो मैंने कंपैरिजन करके दिखाया था उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू आर प्रूविंग, ठीक है। एंड कन्वर्स यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी आर प्रूविंग, राइट? Yes, Yes, ma'am. Yes, it should be very clear in your mind. Yeah, I think we should end the class today because rest of the questions are a bit lengthy, so I'm not going to start. It will take time. All right. thank you, ma'am.